Hello friends, I am Poonam Badgujar, Senior Chemistry Faculty in Vidyamandir classes. This is our first lecture of the revision of the matter and the chemical formula, where we are going to study the how to calculate the valency and the chemical formula. I know that some of the students will know it already. Still see the video and make sure कि you are doing in a correct way so that we can calculate the valencies and we can write the chemical formula correctly for the coming exams, right? So here I have shared the elements from 1 to 20 and I'm just here is highlighting the noble gases over here. The noble gases you have is first noble gas is your helium is your first noble gas over here, and the second noble gas is your this neon is your second noble gas over here, and the third noble gas in the 1 to 20 you have the argon is there, right? Okay. This is the argon, lithium, helium, neon, and the argon are the three noble gases from 1 to 20 is there. So we need to calculate the valencies of the element accordingly. Okay, so I'm starting from the hydrogen and going towards the calcium, but I'm just considering the random examples. So you can see that how to calculate the valencies. Okay. Okay, just I'm proceeding over here. So I need to calculate the valencies. Okay. Okay. So I'm just writing over here is I need to calculate the valency of the elements. So first example over here, I'm just taking over here is the hydrogen. The atomic number of the hydrogen, if I talk about, is 1, right? So if I write down the electronic configuration of the hydrogen, the electronic configuration of the hydrogen is K shell will have the only one electron. Electronic configuration we are writing in a K, L, M, N manner, right? And this manner we have to write the electronic configuration. So my nearest noble gas, I have the three noble gases over here. One is the helium, second is the neon, and third one is the argon. Everybody wants to become like helium, neon, and argon. Okay. Okay, so helium has an atomic number of 2, it has an atomic number of 2, neon has an atomic number of 10, and the argon will have the atomic number of 18. If I write down the electronic configuration of the helium, it is 2. If I write down the electronic configuration of the neon, it's 2, 8, and for the argon, it's 2, 8, 8. You don't have any doubt in this to write the electronic configuration over here, right? So I need to calculate the valency of the hydrogen. Hydrogen is closest to which electronic configuration? It is helium, neon and argon. देखो ये जो 1 है, ये 1 किसके नजदीक है बेटा? ये 2 के नजदीक है. तो मैं ये कह सकती हूँ कि valency ऑफ हाइड्रोजन क्या होगी बेटा? 1 होगी, बिकॉज हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या तो दे सकता है. अगर ये लेगा तो इट विल बिकम लाइक हीलियम, अगर देगा तो उसका 0 हो जाएगा, ना वो ले रहा है ना दे रहा है. ठीक है, तो इसका मुझे ये याद रखना है कि ये चीज क्या है. नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू देखो इनकी मैं तीनों की एक बार दोबारा से बात कर लेती हूँ. तो इनकी वैलेंसी सॉरी इनकी वैलेंसी क्या होगी? तो आप लोग मुझे कहोगे कि ये लोग ना लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, दैट मीन्स इनकी वैलेंसी क्या होगी बेटा? 0, right? Now you understood this thing. Now I'm just considering the one more example over here. I'm just taking मैं बेटा नाइट्रोजन ले लेती हूँ. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. अगर मैं इसमें K11 में इलेक्ट्रॉन भरने लगी तो पहले वाले शेल में 2 भर सकती हूँ मैक्स टू मैक्स. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7 में से 2 भर दिए तो बचे कितने बेटा? 5. तो नेक्स्ट शेल में कितने जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, राइट? तो मैंने नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं? 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए. अब दिस 2,5 is nearest to 2? No, it is not nearest to 2. It is nearest to 2,8. It is not nearest to the 2,8,8. So ये किसके नजदीक है? This nitrogen is nearest to which element? This is nearest to your neon, that is 2,8. तो इसको 2,5 से 2,8 बनने के लिए how many electrons are needed? It needed only 3 electrons. So नाइट्रोजन की if I talk about the valency of nitrogen तो इसकी कितनी हो जाएगी बेटा? 3 हो जाएगी.
बिकॉज कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 2,8 बनने के लिए। अब इसने क्या किया है बेटा, यहाँ पे देखो इसने क्या किया है, गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। अब गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है नेगेटिव, that is basically gaining the electron. I have already discussed this thing with you in the Zoom session कि नेगेटिव और पॉजिटिव का क्या है, राइट। तो अगर ले रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, अगर कोई गेन करेगा तो गेन का मतलब क्या होता है बेटा, नेगेटिव। अगर कोई बेटा लूज करेगा तो उसको क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो इतना आपको समझ आता है। ये गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, -3। अगर लूज कर रहा हो तो +3। अगर मैं यहीं पे एग्जांपल ले लेती हूँ एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। 13 में सबसे पहले शेल में 2 आ सकते हैं। नेक्स्ट वाले शेल की कैपेसिटी कितनी है बेटा, 8 ही है। तो मैं दूसरे वाले शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन डाल भी दूं तो मेरे अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन हुए, 2 + 8 10। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी भी 3 बचे हैं। तो दिस आई कैन प्लेस ओवर here in the next shell. So this is close to what? This is close to 2? No, it is close to 2,8. I think yes, it is not close to the 2,8, 8, right? So I am just writing the valency of this element. तो इसकी valency क्या होगी बेटा, इसको 2,8 बनने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसे लूज करने पड़ेंगे। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी वैलेंसी हो गई +3। आई थिंक आपको अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। तो थोड़ा और आगे अगर मैं बढ़ती हूँ, ओके ओके, तो हम थोड़ा आगे चले गए हैं। आई हैव टू रब दिस विंडो, वेयर इज द इरेजर, ओके, जस्ट रबिंग दिस। Okay, okay, now we have, okay, I'm just, okay, okay. So, I'm just calculating the valency of, well, first of all, I will write all the noble gases over here. This is helium, neon, and you have argon. Neon is Ne. This is 2, this is 2,8, this is 2,8,8. Okay. यहाँ पे मुझे मान लो वैलेंसी अब कैलकुलेट करनी है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8। 8 का मतलब पहले शेल में 2, इट इज K, L, M, N, N। पहले वाले शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने, 6। तो आई कैन प्लेस द 6 इलेक्ट्रॉन इन द K L shell, okay? So it is close to what? It is close to neon, that is 2,8 के। ये क्लोज है बेटा, क्लोज किसके हैं, ये 2,8 के है ना। तो ऑक्सीजन को देखो, अब ऑक्सीजन क्लोज नियॉन के हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, 2,6 को 2,8 बनना है, मतलब इसे क्या करने की जरूरत है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन करने की जरूरत है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, दैट मीन्स व्हाट, इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, -2। अंडरस्टूड। इफ आई टॉक अबाउट द कैल्शियम ओवर हेयर, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 20। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन प्लेस करते हैं, दिस इज 2, इसमें 8 में कर सकती हूँ। देन मैग्नी, इसमें तुम कहोगे कि मुझे कितने करने चाहिए बेटा, 10 करने चाहिए। तो मैं कहूंगी नो, मैंने आपको एक और रूल पढ़ाया था, जिस रूल के हिसाब से आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। नाउ द M विल बिकम द आउटर मोस्ट ओवर हेयर। तो कैल्शियम की दोबारा से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। दिस इज द रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कैल्शियम। तो दिस इज 2, okay, this is 8, next shell is 8, remaining electrons will be 2, this is
2, 8, 8, 2. That is 2 plus 8 is 10 and 8 plus 2 is the 10. 10 plus 10 is 20. That means कि कैल्शियम की एटॉमिक नंबर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिखी है 20 इलेक्ट्रॉन के साथ में. देखो आउटर मोस्ट शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं. दैट मीन्स आई एम करेक्ट ओवर हियर, राइट? So 2, 8, 8 is close to what? It is close to argon. That is 2, 8, 8. इसको 2, 8, 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने हैं? इसे 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं? देने हैं. तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी हो गई? दिस इज +2 बिकॉज मैंने कहा था लूज करना प्लस, गेन करना माइनस. ओके, आई थिंक दिस थिंग यू विल अंडरस्टूड, राइट? Okay, now we are proceeding. Now we are proceeding towards the writing of the chemical formula over here. तो हमें writing of the chemical formula भी बेटा यहाँ पे पढ़ना है कि how to write the chemical formula of that particular compound. तो हमें वो चीजें सीखनी है. तो कैसे सीखनी है वो देखते हैं. सबसे पहले मैंने आपको वैलेंसी सिखा दिया और मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस की एक बार सीरीज देखिए. आप वीडियोस अगर पुरानी वीडियोस देख पाओगे तो मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस की वीडियोस में एक लिस्ट दी हुई है. दैट यू नीड टू रिमेम्बर. जो बेसिक है आपको जो याद करने हैं वो मैं बेटा यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको, सो दैट यू कैन रिमेम्बर ओवर हियर, राइट? यू विल रिमेम्बर. तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक जो आइडिया है उनका दे देती हूँ. जैसे कि मैं बात करती हूँ सबसे पहले हाइड्रोक्साइड की. हाइड्रोक्साइड आयन इसे कहा जाता है हाइड्रोक्साइड. अब मैं बात कर लेती हूँ बेटा NO3 नेगेटिव, दैट इज नाइट्रेट, राइट? अब इसी में अगर मेरा मन करता है कि मैं NO2 नेगेटिव लूं तो इसका नाम होता है बेटा नाइट्राइट, राइट? और यहाँ पे अगर मैं ले लेती हूँ HCO3 नेगेटिव, दिस इज बाय कार्बोनेट. अगर मैं यहीं पे ले लेती हूँ CO3 नेगेटिव, दिस इज नोन एज कार्बोनेट, राइट? एंड अगर मैं यहीं पे ले लेती हूँ SO4 2 नेगेटिव, द वे आई एम राइटिंग द फॉर्मूला इज वेरी केयरफुली. यू हैव टू सी कि 4 नीचे है उनके चरणों में एंड द 2 इज ओवर एट द टॉप, दैट इज ताज उसका. दैट इज नोन एज द सल्फेट. Now nitrate, sulfate, carbonate, and if I talk about the NH4 positive, that is the NH4 positive is ammonium. Or sulfate, phosphate. Phosphate is PO4. 3 negative is phosphate. अब ये हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया एंड सल्फाइड, सल्फेट. एक और बच जाता है बेटा मेरे पास SO3 2 नेगेटिव, दैट इज सल्फाइट. सल्फाइट. तो ये जो सारे के सारे मैंने कहा कि आपको ये रिमेम्बर करने पड़ेंगे. दीज आर द पॉली एटॉमिक आयंस, राइट? दीज आर नथिंग बट पॉली एटॉमिक आयंस विच वी नीड टू रिमेम्बर ओवर हियर, राइट? तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये मेरे यहाँ से ले तक बेटा ये पूरे पॉली एटॉमिक आयंस वी नीड टू रिमेम्बर. sorry, at least you need to remember this thing. Now I'm just making you to clear about the concept that the over here see, यहाँ पे अगर मैं बात करूं बेटा कहाँ पे बात करूं? ओके, थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा कि सल्फेट क्या होता है, सल्फाइड क्या होता है, तो मैं वो चीज आपकी क्लियर कर देती हूँ. सल्फेट जो होता है आपका, ओके, ओवर हेयर इफ यू सी सल्फेट एक चीज होती है बेटा, सल्फेट के साथ में ही आता है सल्फाइट होता है एंड सल्फाइड होता है, राइट? दिस यू नीड टू रिमेम्बर. यहाँ पे 8 आइट और आइड है. सिमिलरली इसी की तरह में नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड नाइट्राइड होता है, राइट? तो सल्फेट क्या होता है?
SO4 2 नेगेटिव, सल्फाइड मैंने अभी पढ़ा SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड होता है S के ऊपर 2 नेगेटिव, नाइट्रेट होता है NO3 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है NO2 नेगेटिव, नाइट्राइट होता है N के ऊपर -3। तो ये दीज आर यू नीड टू रिमेम्बर, ओके। अब मैं फॉर्मूला आपको लिखना बताती हूँ। तो सबसे पहला कंपाउंड मैं अपना यहाँ से उठा लेती हूँ, वेयर इज इट, इट इज ओवर, ओके, इट इज ओवर हेयर इज द सोडियम सल्फाइड। तो मुझे बेटा सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला लिखना है। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे मैं कंपाउंड का नाम लिख देती हूँ। कंपाउंड का नाम क्या है मेरे पास, सोडियम सल्फाइड। तो सबसे पहली बात तो मुझे सोडियम लिखना है, मुझे सल्फर लिखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 होता है, 11 होता है तो आई कैन राइट 2,8,1। इट इज क्लोज टू विच, देखो सोडियम की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सोडियम इज 2,8,1, तो इट इज क्लोज टू द नियॉन, सो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, तो सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, राइट। अब वहीं पे मैं सल्फर की बात करती हूँ। सल्फर इज 2,8,6 होता है, राइट। सल्फर की बात करते हैं 2,8,6, इट इज क्लोज टू द 2,8,8, सो इसकी वैलेंसी हो गई बेटा -2। तो यहाँ पे देखो इनकी वैलेंसीज मुझे उस हिसाब से लिखनी है। सबसे पहले मैंने कंपाउंड का नाम लिख दिया। कंपाउंड के नाम लिखने के बाद में उनके सिंबल्स लिख दिए, जो इस कंपाउंड के अंदर में 2 सिंबल्स यूज हो रहे हैं, ये रहे वो। अब उसके बाद में सोडियम की वैलेंसी मुझे पता है बेटा +1 होती है, सल्फाइड की वैलेंसी -2 होती है। तो ये चीज क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज Na2S1 होता है, 1 अंडरस्टूड होता है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो माई फॉर्मूला इज Na2S, राइट। सो अगर मैं बात करती हूँ और मैं 2-3 एग्जाम्पल और डिस्कस कर देती हूँ। जैसे मैं डिस्कस कर देती हूँ, अमोनियम सल्फेट इज ओवर है। अमोनियम सल्फेट को जरा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, राइट। ओके, अमोनियम सल्फेट को मैं डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप आ जाओगे, थोड़ा सा मैं बोर्ड को डिवाइड करूँ। एंड फ्रॉम, ओके, यहाँ पे बेटा मैं अमोनियम सल्फेट का जरा फॉर्मूला लिख के आपको बता देती हूँ। दैट इज बेसिकली अमोनियम एंड यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा सल्फेट, राइट। तो देखो अमोनियम मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया। व्हाट डू यू मीन बाय अमोनियम। अमोनियम बेटा NH4 होता है, राइट। और सल्फेट मैंने अभी आपको बताया SO4 होता है। मेक श्योर कि यू विल रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी एलिमेंट, राइट। ओके, तो मेरे पास सल्फेट होता है SO4। अमोनियम की वैलेंसी मैंने आपको बताया, आपको याद रखनी पड़ेगी, पॉलीएटॉमिक आयन की वैलेंसी दैट इज +1। सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल फाइंड NH4 का होल ट्वाइस SO4 का 1। देखिए NH4 एक पर्टिकुलर एक 1 स्पीशीज है, इसकी वैलेंसी पूरी की पूरी कितनी हो गई है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड सल्फेट एक पूरा एटम है, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 अंडरस्टूड होता है, सो वी डोंट नीड टू राइट दैट 1। सो इसका फॉर्मूला हो गया अमोनियम सल्फेट। आई थिंक नाउ यू विल अंडरस्टूड द थिंग्स। सो मैं एक और एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर देती हूँ, दैट इज आयरन सल्फेट, जो कि ये मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। तो हम लोग आयरन सल्फेट की तरफ मूव करते हैं। ओके, यहाँ पे बेटा मैं आपके साथ में आयरन सल्फेट को थोड़ा, ओके यहाँ पे कर देते हैं ना, वी हैव अ स्पेस ओवर है। ओके, सो here we go, here we go, here we go। तो अब मेरे को क्या डिस्कस करना है बेटा, आयरन, और उसके ब्रैकेट में अगर तुम देखोगे तो 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट, राइट। तो आयरन सल्फेट का फॉर्मूला, आयरन यू नो दैट द सिंबल ऑफ आयरन इज 2,
सल्फेट का क्या होता है बेटा, SO4 होता है। इसकी वैलेंसी आई नो दैट -2 होती है। अब तुम कहोगे कि आयरन इज नॉट देयर इन द 1 to 20, राइट, आई नो दैट, बट इफ यू सी ओवर हेयर तो ब्रैकेट में ये रोमन में 3 लिखा हुआ है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, +3 हो गई। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग, व्हाट यू विल फाइंड, Fe का 2, बट सल्फेट एक वन थिंग मान के चलो तो इसका होल का thrice, right? If you understood this thing, what you have to do, you have to calculate the valencies of each and every element over here. Over here from the 1 to 20, you have to calculate the valency if you don't know that. And moreover, you have to write down the formula of the each and every element, right? And you have to submit as soon as possible, because don't delay this thing. You guys are delaying so much so that कि ये सब तुम ना बासी खाना नहीं खाओ बेटा. If you have given some work, do it that day only or in the next morning, but don't delay after this. Why? Because it is your loss, right? So you have to understand, we have to do that thing. स्कूल में होते तो बेटा आपको वो चीजें तो करनी ही पड़ती. That thing you have to remember कि आप स्कूल में ही हो तो आप उस हिसाब से काम करो तो that will be better thing, right? Okay guys, thank you so much. I think you understood the writing of the chemical formula and the valency. Next class we will discussing about the some questions and some balancing equations. Okay, thank you so much.